نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیل کے جاری مظالم کی شدید مذمت، بھوک، جبری نقل مکانی اور معصوم جانوں کے ضیاع سمیت بڑھتی ہوئی انسانی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی بلا روک رسائی اور پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مقصد کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں جانب کے نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کا اسلام آباد میں پاکستان کرغزستان بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ شہیدوں کا عظیم خاندان، والد کی شہادت کے 20 برس بعد بہادر بیٹا بھی وطن پر قربان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں شہید ہونے والے میجر زیاد سلیم کی راولپنڈی میں رہائش کا آمد، اہل خانہ سے ملاقات، بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ کی شہید کے درجات کی بلندی کی دعا، شہداء کے خاندان کا قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی، محسن نقوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شاندار ستھرا پنجاب ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ جانوروں کی علائشوں سے بایو گیس بنانے کا کامیاب تجربہ۔ لکھو ڈیر کے علاقے میں بایو ڈی گریڈیبل علائشوں کو استعمال کر کے بایو گیس پیدا کی گئی۔ علائشوں سے بایو گیس پروڈکشن سے 60 سے 70 لاکھ روپے کی آمدن متوقع۔ 50 میگا واٹ ویسٹ انرجی پلانٹ سے روزانہ 3000 ٹن کچرا بجلی میں تبدیل ہو سکے گا۔ ماڈل ری سائیکلنگ پارک سے سالانہ 190 ملین روپے کی آمدن متوقع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بریفنگ۔ ایس ای ایف سی کے تعاون سے پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ آسٹریلیا کے پاکستان کے معدنی وسائل بالخصوص 65 ارب ڈالر مالیت کے ریکارڈنگ میں مشترکہ منصوبوں پر توجہ مرکوز۔ توانائی، معدنیات اور آبی وسائل کے انتظام میں اقتصادی شراکت داری پر اتفاق۔ کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں کے لیے کاروبار دوست ماحول کا فروغ۔ کسی قوم، معاشرے یا فرد کی ترقی کے لیے تعلیم ہی مؤثر ہتھیار ہے۔ صحت مند اور مہذب معاشروں کی تشکیل میں تعلیمی اداروں کا اہم کردار ہے۔ اساتذہ کرام کا طلبہ کی تربیت اور شخصیت سازی میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اساتذہ ہی بچوں میں موجود تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا ایف جی پبلک اسکول کراچی میں تقریب سے خطاب۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا عالمی دن، خطرناک مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور پھیلاؤ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ہیپاٹائٹس سی کی روک تھام اور اس کے خاتمے کے لیے قومی پروگرام شروع کیا جا چکا، وزیر اعظم کا پیغام۔ ہیپاٹائٹس صحت عامہ کا سنگین مسئلہ ہے۔ لاکھوں افراد تشخیص میں تاخیر، ناکافی آگاہی اور غیر مؤثر طبی سہولیات کے باعث خاموشی سے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم صحت مند اور ہیپاٹائٹس سے پاک پاکستان کے لیے اپنی اجتماعی ذمہ داری کا اعادہ کرتے ہیں، صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ عالمی ادارہ صحت کا پاکستان میں 1 کروڑ 38 لاکھ ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کے علاج کی ضرورت پر زور۔ WHO کی مہلک مرض پر قابو پانے کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی۔ بارش برسانے والا سسٹم آج رات بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ حالیہ کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں سے سڑکوں کو بھاری نقصان، شمالی علاقہ جات میں شاہراہوں کی بحالی۔ منسرا ناران جلکھر ہائی وے N15 پر ملبہ ہٹا دیا گیا۔ ناران سے بابوسر ٹاپ اور چلاس میں بھی NH کی بحالی کی سرگرمیاں۔ سکردو سے جگلوٹ روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ اور بندش بھی دور کر دی گئی، 20 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کلیئر۔
भारत में असमत दरी का एक और वाकया। बिहार में 26 साल खातून के साथ एम्बुलेंस में इज्तिमाई ज्यादती। खातून गार्ड भर्ती के दौरान जिस्मानी टेस्ट देते हुए बेहोश हो गई थी। नीम बेहोशी के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज से एम्बुलेंस के रूट और वक्त की तस्दीक। जुराइम की बढ़ती वारदातों पर पार्लियामेंट में तशवीश का इजहार। काबिज इसराइली फौज की जानिब से गजा में दिन के वक्त हमले बंद करने के ऐलान के बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फाका कशी से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में जंगबंदी न होने को आलमी नाकामी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने का ऐलान। सऊदी क़यादत मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए कोशां। फ़लस्तीन तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें तेज़। 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज न्यूयॉर्क में आगाज़। 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत। आलमी क़वानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुआहदे के हवाले से फ्रेमवर्क तय पा गया। यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैरिफ आयद होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। यूरोपीय यूनियन की अमरीका के साथ $750 अरब मालियत के तवानाई मुआहदे पर भी रजामंद थी। ये तजारती मुआहदा सबके लिए मुफीद साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप की स्कॉटलैंड में यूरोपीय यूनियन के सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रिकेट सीरीज कौमी स्क्वाड लॉर्ड हिल मियामी पहुंच गया। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। T20 सीरीज अमरीका, वनडे मैचेस तरोबा में शेड्यूल। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को लॉर्ड हिल अमरीका में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को होंगे। इंग्लिश खवातीन टीम का यूरो कप में अपने एजाज का कामयाबी से इत्तेफा। फाइनल में इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट्स पर हरा दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड ने 1-3 से कामयाबी समेटी। कनाडा की फर्नांडिस ने कैरियर में पहली बड़ी कामयाबी समेट ली। फर्नांडिस ने WTA 500 DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में फर्नांडिस ने रूस की एना काल्सनिका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। ATP 500 वाशिंगटन DC ओपन मैन सिंगल्स टाइटल ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमिनोर के नाम रहा। फाइनल में डिमिनोर ने स्पेन के अलेजेंड्रो को शिकस्त दी। डिमिनोर ने फोकेना को 3 सेट्स में 5-7, 6 और 7-6 से हरा दिया। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तादेज पोगाचर के चौथी मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब। पोगाचर ने 3298.3 किलोमीटर का मजमूई फासला 76 घंटे 32 सेकंड्स में तय कर लिया। रेस का 132.3 किलोमीटर का आखिरी मरहला बेल्जियम के वोट वैन आर्ट ने जीता। और 9 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस खवातीन साइकिल रेस दूसरा मरहला स्पेन के मावी गारासिया ने अपने नाम कर लिया। 41 साल गारासिया ग्रैंड टूर की कोई स्टेज जीतने वाले मोहम्मद तरीन साइकिल सवार बन गए। हिस्पानवी साइकिल सवार ने 110.4 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 44 मिनट और 26 सेकंड्स में तय किया। नीदरलैंड की लॉरेना दूसरे, मॉरिशस की कमली कोट तीसरे नंबर पर रहीं।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज अस्तम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने टेलीफोन पर रब्ता किया है और गजा में बगैर ताअत्तुल इंसानी इमदाद पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर जंगबंदी और इंसाफ पर मबनी पायदार अमन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इसराइल की जानिब से जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल के हवाले से आज होने वाली कॉन्फ्रेंस के नतीजा खेज होने की उम्मीद जाहिर करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा में जारी इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत का इआदा करते हुए गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फरहमी पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि न्यूयॉर्क में होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस नतीजा खेज साबित होगी। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल करीब में ईरान के आला सतह वफ़द के दौरे पाकिस्तान पर भी बात की। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेजर ज़ियाद सलीम शहीद के अहल खाना से रावलपिंडी में उनके घर पर मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा, बहन और भाइयों के बुलंद हौसले को सराहा। उन्होंने कहा कि शोहदा के ख़ानदान की कुर्बानियाँ कौम इनका कर्ज नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने कहा कि पहले शौहर और अब बेटा वतन पर कुर्बान किया है। हमेशा वतन और पाक अफवाद के साथ खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी ने पाकिस्तान किर्गिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक पुरअज़्म हैं। उवैस लगारी ने कहा कि एक दूसरे के तजारती तजुर्बात से फ़ायदा उठाना दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने हिलाल तजारत के फ़रोग को पाकिस्तान और किर्गिस्तान का मुश्तरका हदफ करार दिया। वज़ीर तवानाई ने कहा कि सरमायाकारी के शोबे में भी ताउन को फ़रोग देने का भरपूर इरादा रखते हैं। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल के शोबे में तजारत को वुसअत दी जाएगी। उवैस लगारी ने जोर दिया कि दोनों ममालिक के निजी शोबों को तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उन्होंने सियाहत के शोबे में ताउन के फ़रोग के इम्कानात को बेपनाह करार देते हुए कहा कि इन मौक़े के सही मानों में बरूएकार लाना ज़रूरी है। इस्लामी बैंकिंग और तालीमी इस्लाहात के शोबों में भी ताउन को मजबूत करने की अहमियत पर जोर देते हुए उवैस लगारी ने कहा कि तालीम में इश्तराक हमारी शराकत दारी की कलीद बन सकता है। इजलास के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदी तक ले जाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वेस्ट टू वैल्यू मनसूबे पर इजलास हुआ, जहाँ जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने के कामयाब तजुर्बे पर ब्रीफिंग दी गई। लखोडेर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1000 मैट्रिक टन आलाइशों से 20 से 25 हज़ार किलो बायोगैस हासिल हुई, जिससे 60 से 70 लाख रुपए आमदनी मुतवक्के है। इजलास में बताया गया कि 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील करेगा, जबकि मॉडल रीसाइक्लिंग पार्क से सालाना 190 मिलियन रुपए आमदन का तखमीना है। वज़ीर आला ने LWMC की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारी शनाख्त हमारा वतन है। जिन अक़वाम के पास वतन नहीं, उनकी आज़ादी यकीनी नहीं। गजा और मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर दिल खून क्या आंसू रोता है। पाकिस्तानी एक अजीम कौम है। दुश्मन के हमले को हमारी बहादुर अफवाज ने नाकाम बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूद से भारत को दिन में तारे नजर आ गए। कैंट पब्लिक स्कूल कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़र्द और मुआशरे की तरक्की का अहम तरीन राज तालीम है। तालीम से मुआशरे और मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। बेसरो सामानी में बनने वाला मुल्क आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। जिस तरह हमने जंग के मैदान में भारत को शिकस्त दी है, इसी तरह मईशत के मैदान में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मादनियात, तवानाई और आबी वसाइल के शोबों में इक्तसादी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, जिसमें रेकोडिक मनसूबा मरकज़ी हैसियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के मादनी वसाइल खुसूसन रेकोडिक में सरमायाकारी के मौक़े पर गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया है। ऑस्ट्रेलवी इदारे पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मंसूबों और मादनियात के शोबों में जदीद तरबियत के प्रोग्राम्स की तजवीज़ भी दे चुके हैं। वज़ीर तवानाई पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की कानगरी महारत से इस्तेफादा करने के लिए इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। रेकोडिक में मौजूद मादनी ज़खायर की मालियत $5 अरब से ज़्यादा है, जिनमें 2 अरब टन तांबा और 20 मिलियन औंस सोना शामिल है। SIFC की मुआवनत से इन वसाइल के मौसर इस्तेमाल और तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अरबैन के ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त के दरमियान कराची से रवाना होंगी। ज़ायरीन के लिए नजफ़ से वापसी के लिए 18 था 21 अगस्त को परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम परवाज़ों पर टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हेपेटाइटिस सेहत आमा के लिए आलमी चैलेंजेस में से एक है। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने हेपेटाइटिस के खात्मे और आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए ठोस कोशिशें कर रही है और हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म का कौमी प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, जिसका मकसद 2030 तक 165 मिलियन से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और तमाम मुस्बत केसेस का मुफ्त इलाज करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक कौमी तहरीक है जो ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए हमारे इज्तिमाई अज़्म का सबूत है। उन्होंने हेपेटाइटिस के बारे में शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के दिन हम एक सेहतमंद, महफूज और हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान की तामीर के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का इआदा करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम शामिल करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि इस खतरनाक मरज़ के बारे में शऊर उजागर और इसके फैलाव को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ दिया जाए। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। लाखों अफराद तशख़ीस में ताख़ीर, नाकाफ़ी आगाही और गैर मौसर तिब्बी सहूलियात के बाइस खामोशी से इस मरज़ का शिकार हो रहे हैं। इस सूरत हाल से न सिर्फ हमारे निज़ाम सेहत पर बोझ पड़ रहा है बल्कि कौमी मईशत मुतासर हो रही है। सदर ममलकत ने कहा कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए अवामी शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है। लोगों को इस मरज़ से बचाव के लिए ज़रूरी मालूमात फ़राहम करके उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस के खिलाफ मौसर जद्दोजहद के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म कौमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हेपेटाइटिस खामोश कातिल है जो आहिस्ता आहिस्ता जिगर को मुतासर करता है और बर वक्त तशख़ीस और इलाज ना होने पर जानलेवा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद पंजाब ही तरक्की याफ्ता पंजाब है और इससे मुतालिक आगाही मुहिम के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि हेपेटाइटिस टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फील्ड हस्पतालों और क्लिनिक ऑन व्हील्स पर भी दस्तियाब हैं और इससे मुतासरा मरीजों को मुफ्त अद्वियात मरीजों के घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान में हेपेटाइटिस B और C से मुतासरा 1 करोड़ 38 लाख अफराद की फौरी तशख़ीस और इलाज पर जोर दिया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर WHO ने कहा है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के सबसे ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 25 से 30% अपनी बीमारी से आगाह हैं और मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला अफराद की अक्सरियत इलाज से महरूम रहती है। WHO ने वज़ीर आज़म के हेपेटाइटिस C के खात्मे के कौमी प्रोग्राम को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन का इआदा किया है। इस प्रोग्राम के तहत 2027 तक 12 साल से ज़ायद उम्र के 8 करोड़ 25 लाख अफराद में से निस्फ की स्क्रीनिंग और 50 लाख मरीजों के इलाज का हदफ रखा गया है। पाकिस्तान में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर दपांगलू ने कहा है कि WHO पाकिस्तान में इस मरज़ की रोकथाम, बरवक्त तशख़ीस और इलाज को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मुआवनत फ़राहम करेगा। WHO के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों को पैदाइश के 24 घंटों के अंदर हेपेटाइटिस B की वैक्सीन देना, मुल्क की स्क्रीनिंग और हर शहरी को इलाज की सहूलियात फ़राहम करना खतरनाक वायरस से बचाव का मौसर रास्ता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि इस मूज़ी मर्ज़ से बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा की जाएगी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम।
हेपेटाइटिस को एक खतरनाक और खामोश कातिल कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि जब ये मूजी बीमारी आश्कार होती है तो जिगर इस हद तक मुतासिर हो चुका होता है कि जिंदगी की नाव हचकोले खा रही होती है। दुनिया भर में इस वक्त 35 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि पाकिस्तान में इसकी शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। वायरल हेपेटाइटिस दो तरह से होता है। एक हेपेटाइटिस जो कि ए और ई से होता है, इन्फेक्शियस वन होता है, पीला यरकान भी इसको कहते हैं। ऐसा ही खुराक या पानी जो गंदा हो वो इसका बायस बन सकता है। बी और सी बीमारी करते करते 10 से 20 इवन 25 साल तक ले सकते हैं। शुरू में मरीज को कोई अलामत नहीं होती, इनका जिगर सुपड़ना शुरू हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, कई दफा खून की उल्टियां आती हैं। सो बी से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गेट वैक्सीनेटेड। 2025 के आलमी दिन का मौजू जिगर की हिफाजत के लिए ऐसे अवामिल की हौसला अफजाई करना है जो हेपेटाइटिस के खात्मे और जिगर के कैंसर से बचाव में मददगार हैं। एहतियाती तदाबीर ये है कि आप जब भी बार्बर के पास जाएं, मतलब हजाम के पास जाएं, तो ब्लेड नया यूज़ करें, हो सके तो अपनी किट इस्तेमाल करें। सर्जरी या दांत का जब भी आप प्रोसीजर करवाएं तो इस चीज़ का आप बावर करें कि आप वो जो आलात हैं वो स्टरलाइज हों। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के मरीज इस वायरस को बरसों साथ लेकर चलते हैं, जिसके नतीजे में इन्हें जिगर की अगली स्टेज के कैंसर का खतरा भी लाहक हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस के मर्ज से बचने के लिए एहतियात ही बेहतरीन तरीका है। इस सिलसिले में हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग और जल्द तशखीस के साथ साथ इलाज के बारे में आगाही पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को इस बीमारी के खतरात से आगाह करना और इसके खात्मे के लिए कोशिशों को तेज करना है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की खुसूसी हिदायत पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाका जात में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों की बहाली का अमल तेज़ कर दिया है। मानसेरा, नारान, जलखड़ हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात से लैंड स्लाइडिंग के मलबे को हटा दिया गया है, जबकि नारान से बाबूसर टॉप और चिलास तक बहाली की सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात अली शेर महसूद के मुताबिक 242 किलोमीटर तवील N15 शारा कई मकामात पर बंद थी, जिसको मरहलावार खोल दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर बंद स्कर्दू से जगलोट जाने वाली मरकजी शारा भी बहाल कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में हैवी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन जारी रहा। क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा, ताहम बरवक्त कार्रवाई से बड़े हादिसात से बचाव मुमकिन हुआ। डिप्टी कमिश्नर दियामिर अताउर रहमान ने शराह बाबूसर पर थक नाला का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। उनका कहना था कि शाहराहों और ज़रई ज़मीनों समेत दीगर नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए ड्रोन सर्वे किया गया है। पाक फ़ौज, GB स्काउट्स, NDMA, सियाहती और मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अताउर रहमान ने यह भी कहा कि जल्द थाना से मुख्तलिफ मकामात पर टीमें लापता अफराद की तलाश कर रही हैं, जबकि मुतासरीन में 84 खेमे, 84 किचन सेट, 10 फूड पैकेट्स और 10 रज़ाइयाँ तकसीम की गई हैं। 13 किलोमीटर के रकबे पर 5 से 10 फुट ऊंचे मलबे की तहें मौजूद हैं। थोड़ से एक खातून की लाश बरामद हुई है जो जाए हादसा से 60 किलोमीटर दूर है। गुज़श्ता हफ्ते शाहराह बाबूसर पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले में अभी तक एक ही ख़ानदान के अफराद लापता हैं। निजी टेलीविज़न की खातून एंकर शबाना लियाकत अपने शौहर और 3 बच्चों समेत 21 जुलाई से लापता हैं। शाहराह बाबूसर पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे से एक पर्स मिला है, जिसमें उस लापता ख़ानदान के अफराद के कार्ड्स और कुछ रकम भी मिली है, जिसके बाद से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये ख़ानदान सैलाबी रेले में बह गया है। शाहराह बाबूसर पर लापता होने वालों में मंडी फैज़ाबाद के मलिक आफाक और अंसर मजीद, जबकि नौशहरा के लियाकत अली, शबाना, एमल, ईमान और खजाब की तलाश जारी है।
नाज़रीन, मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स की लहर जारी है। तहम आज से मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और निकासी आब में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि शहरियों खुसूसन नशेबी इलाकों में रहने वालों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र PDMA पंजाब ने मॉनसून फैक्ट शीट जारी कर दी, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सियालकोट में बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मॉनसून बारिशों की पेशगोई है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मॉनसून बारिशों में हादिसात के बायस 152 शहरी जाँ बहक और 539 जख्मी हुए, जबकि 210 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सोगवार ख़ानदान की माली मुआवनत यकीनी बनाई जा रही है। PDMA के मुताबिक हालिया बारिश के बायस दरियाओं के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए सिंध में कालाबाग, तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए चनाब, रावी, जहलुम और सतलुज में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र PDMA के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। रुख करेंगे लाहौर का, जहां आज मौसम गर्म और मरतूब है। तहाँ मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आज शाम से शुरू होने का इम्कान मौजूद है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दरियाओं में पानी के बहाव के बारे में मजीद तफसील जानते अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी, शहर लाहौर में मौसम की बात की जाए तो आज शहर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और इस वक्त जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। आज शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से जो है मानसून बारिशों का 5वां स्पेल जो है जारी होने का इम्कान है, जिससे 31 जुलाई तक जो है वो बारिशें जो होंगी। इसके अलावा PDMA ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर जो अजला हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस जो है वो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर जो है दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। इसके अलावा दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में भी पानी का जो बहाव है उसमें भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से PDMA ने अपने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं और तमाम मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। शहर कायद कराची में सुबह से मतला अब्र आलूद है और ठंडी नसीम बहरी चल रही है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा अरीबा खिजर मौजूद हैं। जी अरीबा, मौसम की तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि शहर कायद में मौसम कैसा है। शहर में आज मतलब ज़्यादातर अबरालूद और कभी कभार तेज़ हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कराची में हवा की रफ्तार 40 से 35 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 78% है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिंध के दूसरे अजला की, तो अगले 24 घंटों के दौरान सिंध के मशरकी और जुनूबी इलाके थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मिट्टी, छाछरू, सांगर और मगरबी सिंध में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और फुहार का इम्कान है। जी, मानसून बारिशों का 5वां स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान है। मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है और दरियाए जहलुम और चिनाब में तुग़यानी का इम्कान है। दरियाए जहलुम में रसूल बैराज के मकाम पर पानी की आमद 4185 क्यूसिक और अखराज 4000 क्यूसिक है। दरियाए चिनाब में कादिराबाद के मकाम पर पानी की आमद 42778 क्यूसिक और अखराज 27778 क्यूसिक है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन का कहना है कि ज़िले इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और DC ऑफिस में मरकजी फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया पाक पतन की जानिब से फ्लड कैंप कायम किए गए हैं और मुसलसल निगरानी की जा रही है। तफसील जानते हैं अब्बास अली आरफी की इस खुसूसी रिपोर्ट में।
ممکنہ سیلابی خطرات کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے تمام متعلقہ اداروں کے ہمراہ بابا فرید پل پر دریائے ستلج اور فلڈ بندز کا معائنہ کیا، حفاظتی بند کے کٹاؤ سے متاثرہ حصے کا دورہ کیا اور مرمت و بحالی کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ محکمہ انہار کے ایکسین حافظ محمد ریاض نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن کو فلڈ بندز کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن نے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بچاؤ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے احکامات جاری کیے۔ انشاءاللہ ابھی فلڈ کی سچویشن نہیں ہے، لیکن ان اینی کیس کسی ایونچویلٹی کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، ہمارے کنٹینجنسی پلانز جو ہیں وہ ریڈی ہیں and they will be triggered into action۔ اس وقت ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح معمول سے کم ہے، پانی کا اخراج 9000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 50,000 کیوسک پر نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے پیش نظر تمام محکمے الرٹ ہیں، فلڈ بندز پر کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ عباس علی عارفی، پی ٹی وی نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ خبر شامل کریں گے یونان سے، جہاں شدید گرمی کی وجہ سے جنگلاتی آگ نے 50 کے قریب مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شدید گرمی سے لگنے والی خوفناک آگ نے یونانی عوام اور حکومت دونوں کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایتھن سمیت مختلف علاقوں میں اگلے چند روز تک درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے اور ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے، جس سے بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کے لیے خاص طور پر خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف ایتھنز کے شمالی علاقوں میں جنگلات کی آگ نے آبادی والے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جہاں درجنوں گھر خالی کروائے گئے اور فائر بریگیڈ، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ شدید گرمی اور آگ کی وجہ سے زیتون کے باغات، مکانات اور زمینیں جل چکی ہیں اور درجنوں افراد کو کشتیوں کے ذریعے ساحل سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے یونانی حکومت نے یورپی یونین سے مدد مانگ لی ہے اور دیگر ممالک سے امدادی طیارے پہنچ چکے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور ہنگامی الرٹس پر فوری عمل کریں تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اور ابھی صورتحال کا ذکر کریں گے غزہ کی۔ غزہ میں بھوک و افلاس کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی، جبکہ شہداء میں 87 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں تھم نہ سکیں۔ ایک ہی روز میں مزید 88 فلسطینی شہید جبکہ 374 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,821 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 1,04,851 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل سے امداد کی رسائی میں رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ المواسی، دیر البلا اور غزہ میں روزانہ صبح 10 سے شام 8 بجے تک فوجی کارروائیوں میں وقفہ ہوگا۔ عالمی خوراک پروگرام کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کا بحران خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کا واحد حل مستقل جنگ بندی ہے، جس کے بغیر پوری آبادی تک محفوظ اور مسلسل امداد ممکن نہیں۔ غزہ کے 20 لاکھ شہریوں تک خوراک، پانی اور ادویات پہنچانے کے لیے زمینی راستے کھولنا ضروری ہے۔ برطانیہ نے غزہ جنگ میں روزانہ 10 گھنٹے کا وقفہ ناکافی قرار دیتے ہوئے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمن نے اسرائیل کی جنگی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بلا روک ٹوک امداد تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی عوام اپنے ہی ملک کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں، جس کا مقصد حکومت پر غزہ میں جاری سنگین انسانی صورتحال پر قابو پانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ دارالحکومت تل ابیب میں سینکڑوں افراد نے امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا اور حکومت سے جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی غزہ میں نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ لندن میں برطانوی وزیراعظم کے دفتر کے باہر ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ خالی برتن بجا کر غزہ میں غذائی قلت ختم کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیدرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ڈنمارک، لبنان، جرمنی، چلی، صومالیہ، یمن، انڈونیشیا اور ایران میں بھی غزہ کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کی امید ظاہر کی ہے۔
एक बयान में मार्को रूबियो का कहना है कि खुसूसी एलची विटकॉफ जंग बंदी मुज़ाकरात पर दिन रात काम कर रहे हैं। विटकॉफ ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की और वो मुआहिदे के करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुआहिदे के तहत लाशों और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मुआहिदे के तहत 60 दिन की जंग बंदी के अख्ताम पर बाकी यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि तमाम अमरीकी रिहा हो चुके हैं। हमें तमाम यरगमालियों की फिक्र है। गजा में जो कुछ हो रहा है इसका एक बहुत आसान हल है कि तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए। अपने हथियार डाल दो, हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। और अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुआहदे के हवाले से फ्रेमवर्क तय पा गया है। इस बात का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की सरबराह अर्सुला वॉन डर लेयन से स्कॉटलैंड में मुलाकात के बाद किया। मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन ने अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी और अमरीका से $750 अरब मालियत की तवानाई खरीदने पर भी रजामंदी जाहिर की गई है, जबकि यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि यह तजारती मुआहदा सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यूरोपीय यूनियन के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने कहा कि मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका ने कुछ मसनूआत पर सिफर टैरिफ का भी फैसला किया है। तजारती मुआहदे से इस्तेहकाम आएगा। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने बीजेपी की रियासती हुकूमतों में बंगाली बोलने वाले भारतीय शहरियों पर जुल्म जबर की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोर्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमती सिर्फ जुबान की बुनियाद पर भारतीय शहरियों को गैर कानूनी महाजिर करार देकर बेदखल कर रही हैं। ये वही बात है जो हम बरसों से कह रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डायरेक्टर एलियन के मुताबिक बंगाली बोलने वाले शहरियों को तासुब का निशाना बनाना बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी का हिस्सा है। यहाँ तक कि भारतीय शहरी भी महफूज नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ भारतीय वजारत दाखिला की मरकजी हिदायत पर अमित शाह की सरबराही में मुनज़्ज़म अंदाज में की जा रही हैं। ममता बनर्जी ने इसे आईन हिंद के आर्टिकल 14 और 19 की खुली खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि बीजेपी भारत को सेकुलर रियासत से हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसीज़ पर आलमी सतह पर सवालात खड़े कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंसूबे की कलई खुल गई। जदीद दिफाई निज़ाम का ख्वाब महज एक सियासी नारा साबित हुआ, जबकि भारतीय फ़िज़ाइया आज भी सोवियत दौर के 62 साल पुराने मिग 21 तैयारों पर इन्हिसार कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन तैयारों को उड़ता हुआ ताबूत और बेवाएं बनाने वाले जैसे नाम दिए गए हैं। अब तक तकरीबन 450 मिग 21 तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 170 से ज़ायद पायलट हलाक हुए। दीवार की रिपोर्ट के मुताबिक इन तैयारों का आखिरी स्क्वाड्रन रवां साल 19 सितंबर को रिटायर किया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी, जो मतलूबा 42.5 स्क्वाड्रन से कहीं कम है। भारतीय फ़ौज का जुगाड़ कल्चर, जिसमें वक्ती मरम्मत, पुराने पुर्जे और मतूक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है, अब कौमी सलामती पर सवालिया निशान बन चुका है। मकामी लड़ाका तैयारे बनाने का मनसूबा 1983 में शुरू हुआ, मगर आज तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मुतबादल निज़ाम की सुस्त रफ्तार खरीदारी ने भी पुराने मिग 21 तैयारों को ज़बरदस्ती इस्तेमाल में रखकर फ़ज़ाइया की सलाहियत को मुतासिर किया है। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की दिफाई खुद इन्हिसारी की पॉलिसी नाक़िस हिकमत अमली और ज़मीनी हक़ाइक़ से लाताल्लुकी का शिकार है। मेक इन इंडिया महज एक मीडिया मुहिम बनकर रह गया है। मोदी राज में रियासती सरपरस्ती में औरतें गैर महफूज हो गईं। मोदी के दौरे इक़्तिदार में रियासती नाकामियों के शिकार ख़वातीन एक बार फिर जुल्म के निशाने पर हैं। हिंदुस्तान में असमत दरी का एक और वाक़या मोदी की मुसलसल रियासती नाकामी है। NDTV के मुताबिक बिहार में 26 साल खातून को एम्बुलेंस में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। खातून गार्ड भर्ती के दौरान जिस्मानी टेस्ट देते हुए बेहोश हो गई थी। मुतासिरा खातून का कहना है कि नीम बेहोशी के दौरान एम्बुलेंस में 3 से 4 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। CCTV फुटेज से एम्बुलेंस के रूट और वक्त की तस्दीक कर ली गई। रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान ने बिहार में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम की जिंदगियों से खेल रही है।
और यहाँ पर बुलेटिन में आपको बताएंगे कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहना काचा इंटरचेंज पर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ईपीए रिंग रोड पर 25,000 जबकि पीएचए ने 3,000 पौधे लगाए हैं। मजमूई तौर पर 3 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। उन्होंने बताया कि मुहिम में जामन, सुखचैन, शहतूत, रात की रानी और अनार समेत 17 इकसाम के पौधे शामिल हैं, जबकि बच्चों की शिरकत ने मुहिम को मजीद मौसर बनाया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर काबू पाया गया है। पहली बार फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि दरख्तों के ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। स्मोक में नुमाया कमी आई है और भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए गए हैं। ये सब इकदाम महज दावे नहीं बल्कि अमली काम का सबूत है और हर शहरी का शजरकारी में अपना किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासर हसास यूनियन काउंसिलों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है। ये मुहिम 4 अगस्त तक जारी रहेगी। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे वकार अहमद की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासर हसास यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम का आगाज 28 जुलाई से हो रहा है। फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन FIPV कैंपेन में सूबे की 123 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स को शामिल किया गया है। हसास यूनियन काउंसिल्स डेरा बुगटी, कोयटा, पशीन, चमन, दुकी, योब और किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं। मुहिम में 5,85,490 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। 1,835 वैक्सीनेटर्स की टीमें मुहिम का हिस्सा हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के मुताबिक FIPV के टीके ग़िज़ाई किल्लत या बार बार बीमारियों का शिकार होने वाले बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए इंतहाई मौसर हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी की शरह 98% से कम होकर अब 17% तक रह गई है। बलूचिस्तान में साल 2024 के दौरान सूबे के तमाम 23 माहौलियाती निगरानी सेंटर्स में वायरस की मौजूदगी 95% तक रिपोर्ट हुई थी। बार बार चलाई जाने वाली इंसदाद पोलियो कैंपेन्स की बदौलत रवां साल पोलियो का एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। FIPV मुहिम पोलियो वायरस की मुंतकली रोकने और कमजोर बच्चों में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली का हिस्सा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि पोलियो वैक्सीनेशन टीमों के साथ ताउन करें। मुहिम 4 अगस्त तक जारी रहेगी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका ने LOC चकोटी सेक्टर का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल पाक फौज के अफसरान ने किया। दौरे के दौरान शुरका को पाक फौज की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इस ब्रीफिंग में चकोटी सेक्टर में पाक फौज की जानिब से दी गई कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और हासिल की गई कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। शुरका ने पाक फौज के जज्बा कुर्बानी और पेशावराना सलाहियतों को भरपूर अंदाज में सराहा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत के मौके पर कंट्रोल लाइन के चकोटी सेक्टर में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अस्करी हुकाम, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शहीद की कुर्बानी, जुर्रत और क़यादत को कौम का फ़ख्र करार देते हुए उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कैप्टन सरवर पाक फौज के पहले शहीद थे जिन्हें निशान हैदर का एहसास मिला। शुरका का कहना था कि वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इस वतन की बुनियादों में अफवाज पाकिस्तान का लहू शामिल है। खबर आपको देते हैं उकाड़ा से, जहां 2 हफ्ते पर मुहित 19वां पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम के तहत जिला भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 तलबा और तालिबात को पुलिस के दरकार निज़ाम कार, दरपेश चैलेंजेस और अवामी खिदमत से मुतालिक अमली तरबियत और मुशाहिदे का मौका फ्राहम किया गया। इख्तितामी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की। प्रोग्राम के दौरान शुरका को सेफ सिटी प्रोजेक्ट, पुलिस खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मुख्तलिफ थानों का दौरा भी करवाया गया, जहाँ उन्होंने पुलिस के जदीद वर्किंग, फील्ड ऑपरेशन और शहरी सहूलियात की फराहमी के अमली पहलुओं का मुशाहिदा किया। और आपके लिए चलते हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम गंगा चोटी पर, जो कुदरती हुस्न और जमाल में अपनी मिसाल आप है। इसी की सैर हमें कराएंगे हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में वाक़ है। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले से मुल्हिका ये खूबसूरत तरीन सियाहती मकाम सतह समंदर से तकरीबन 9,987 फुट बुलंद है। इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर जबकि मुजफ्फराबाद से तकरीबन 58 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पुख्ता सड़क यहाँ तक रसाई को आसान बना देती है। यहाँ पहुँचकर मालूम होता है कि कुदरत का हुस्न और जमाल अपने हर अंदाज में यहाँ समोया हुआ है। यहाँ के पहाड़ों की सरसब्ज़ व शादाबी आंखों के लिए बाइसे तरावट है।
मौसम गर्मा जब अपने उरूज पर होता है तब भी यहाँ मौसम इंतहाई मुतदिल होता है और फिजा में मुसलसल खुनकी का एहसास रहता है। मुल्क के तूलो अर्ज से सयाह यहाँ आते हैं और इस इलाके के हुस्न जमाल और रानाइयों में खो जाते हैं। ये हमें बहुत ही खूबसूरत लगी है, इसका लैंडस्केप जो है और इसका जो वेदर है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी, बादल थे, ऐसा लग रहा था हम बादलों के अंदर है। वेदर यहाँ का एक्सीलेंट है, और भी जगह देखी है लेकिन इसका अपना ही मजा है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर देख के तो मेरा दिल जो है बाग बाग हो रहा है। यहाँ हाइकिंग ट्रैकिंग भी की जा सकती है और घुड़सवारी का मजा भी लिया जा सकता है। यहाँ से आप घोड़े किराए पे ले सकते हैं। आज हमने भी ऐसे ही किया। अर्ली इन द मॉर्निंग हम यहाँ पर आए और बिल्कुल सामने पीछे जो गंगा चोटी है वहां तक हम घोड़ों के ऊपर सवार होकर गए। मुकाबले में हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जोग्राफी साख्त शुमाल के बर्फ़ पोश पहाड़ से लेकर जनूबी खुश्क इलाकों तक हमें माहौलियाती तब्दीली के असरात का बराह रास्त निशाना बनाती है। हमने हालिया बरसों में ग्लेशियर, झीलों के फटने, ज़मीन के कटाव, गैर मुतवक्का मानसून बारिशों और ज़री पैदावार में कमी जैसे मसाइल का सामना किया है। ये सिर्फ माहौलियाती ख़तरा नहीं बल्कि इक़्तिसादी और माशरती ख़तरा भी है। हमें माहौलियाती मज़ाहमत, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना होगी, जैसे कि पायदार तरक्की, मनसूबाबंदी, साफ तवानाई की तरफ मुंतकिली, आफात से बचाव के निज़ाम में बेहतरी और सबसे बढ़कर आवाम में शऊर पैदा करना शामिल है। आज की कॉन्फ्रेंस तहकीक, मकालमे और मुश्तरका कोशिश के फ़रोग़ का बेहतरीन ज़रिया है। मैं नौजवानों और माहिरीन से अपील करता हूँ कि वो मकामी सतह पर न सिर्फ मौसर हल तलाश करें बल्कि हुकूमत की पॉलिसी साजी में मौसर तजावीज़ के साथ अपना हिस्सेदारी यकीनी बनाएँ। याद रखें, माहौलियाती तब्दीली सिर्फ साइंसी मसला नहीं बल्कि समाजी, माशी और इखलाकी मसला भी है। हमें इन तबकात की आवाज़ भी सुननी होगी जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर होते हैं, और ये आवाज़ हमें इन इलाकों के नौजवानों अपनी तालीम और तहकीक से मौसर अंदाज में सुना सकते हैं। आखिर मैं कहूँगा कि ये मसला हमारे वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन यही मौका है कि हम सब एक पायदार, सरसब्ज और महफूज मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं इस मौके पर एक बार फिर NYCCC की इंतज़ामिया और तमाम टीम अरकान को आज की इस बेहतरीन नशिस्त पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तंजीम एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ सूबे के तमाम नौजवानों को अपने साथ मिलाते हुए मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात पर काबू पाने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देती रहेगी और हुकूमती पॉलिसियों में मददगार साबित होगी। मैं अब सबको गवर्नर हाउस की जानिब से भी अपने मुकम्मल ताउन और सरपरस्ती का यकीन दिलाता हूँ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली असर हासिल का सबसे बड़ा मसला है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायां हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है। खेलों की खबरों में खुश आमदीद और सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड लॉर्ड हिल मियामी पहुंच गया। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में लॉर्ड हिल पहुंचा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। T20 सीरीज अमरीका में होगी जबकि वनडे मैचेस तरोबा में शेड्यूल हैं। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को लॉर्ड हिल अमरीका में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को शेड्यूल हैं। इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। मेजबान इंग्लैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल है।
मैनचेस्टर में खेले गए मैच के आखिरी रोज भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 425 रन बनाए। भारत की जानिब से 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की। कप्तान शुभमन गिल ने 103 रन बनाकर आउट हुए और रविंद्र जडेजा ने 107 और वाशिंगटन सुंदर 101 रन के साथ नॉट आउट रहे। केएल राहुल ने 90 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स ने 2 विकेटें हासिल की। बेन स्टोक्स और जोफ्रे आर्चर ने एक विकेट ली। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 358 रन जबकि इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 669 रन बनाए थे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 31 जुलाई से ओवल में शुरू होगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी अपने दूसरे ग्रुप मैच में कुवैत को हरा दिया। मिस्र में जारी इवेंट में कौमी टीम ने कुवैत को 3-0 से मात दी। कौमी टीम ने पहले मैच में ब्राजील को 3-0 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच आज फ्रांस के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में पाकिस्तान को ग्रुप एफ में रखा गया है। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का पहला मैच बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। ओस्लो में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम और नॉर्वेजियन क्लब के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। हरीफ टीम ने आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर किया। नॉर्वे कप में 25 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने 2023 में चांदी का तमगा जीता जबकि 2024 में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। इंग्लिश खवातीन टीम ने यूरो कप में अपने एजाज का कामयाबी से दिफा कर लिया जबकि बासेल स्विट्जरलैंड में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूट आउट पर हराया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। 25वें मिनट में मायोना ने गोल करके हस्पानवी टीम को बर्तरी दिलाई। 57वें मिनट में इंग्लैंड की अलीसा रूसो ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए इजाफी वक्त दिया गया तहम कोई भी टीम फैसला कुन गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया जिसमें इंग्लैंड ने 3 गोल किए जबकि स्पेनिश टीम 1 ही गोल कर सकी। कनाडा की लिली फर्नांडिस ने डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। अमेरिकी दारुल हुकूमत में खेले गए WTA 500 टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में लिली फर्नांडिस ने कैरियर की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। फर्नांडिस ने रूस की एना कांस्काया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर पहला 500 टाइटल अपने नाम किया। फर्नांडिस ने कांस्काया को 6-1 और 6-2 से बआसानी ज़ेर किया। वॉशिंगटन डीसी ओपन मेन सिंगल्स टाइटल ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डेमिनोर के नाम रहा। फाइनल में डेमिनोर ने स्पेन के अलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना को शिकस्त दी। वॉशिंगटन में खेले गए ATP 500 इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलियन नंबर 1 खिलाड़ी डेमिनोर ने स्पेन के अलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना को सख्त मुकाबले के बाद 3 सेट्स में मात दी। पहला सेट 5-7 से हारने के बाद डेमिनोर ने कमबैक किया। खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 5वीं मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ये मनाजर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 5वीं मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ये मनाजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान अपने ताल्लुकात को मजीद इन्हांस कर रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 5वीं मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद वुसअत दी जा रही है मुख्तलिफ शोबों में। और ये मनासर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किर्गिस्तान बैनुल हुकूमती इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। और ये यादाश्तें हैं मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के हवाले से। इस वक्त लाइव मनासर पाकिस्तान टेलीविजन आपको दिखा रहा है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। और एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।